आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बैनुल-अक़वामी सिटी परेड मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में गवर्नर जस्टिस अब्दुल नज़ीर ने शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर ने मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों, बहरी अफवाज के आला हुक्काम और शहरी क़ियादत के साथ परेड का मुआयना किया। इस प्रोग्राम से गवर्नर ने खिताब किया। It's a matter of immense pride and personal joy for me to stand here this evening on the shores of Ramakrishna Beach with the Bay of Bengal before us and lakhs of proud citizens around us for the International City Parade International Fleet Review and Exercise Milan 2026. Visakhapatnam is not merely a host city. It is the maritime heart of our eastern seaboard, a city whose destiny has always been shaped by the sea. For generations, people of Andhra Pradesh have looked to these waters for opportunity, prosperity, and connection with wider world. Tonight, those very waters host an extraordinary gathering of friendly foreign naval ships and aircraft alongside the proud platforms of Indian Navy, a powerful symbol of global maritime partnership anchored off our coast. आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने आज भारत मंडपम में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में शिरकत कर रहे हैं और जराये के मुताबिक वजीर आला समिट में मसनूई ज़हानत, क्वांटम टेक्नोलॉजी, जदीद हुनरबंदी के मैदान में कई स्ट्रेटेजिक मफाहिमत की याददाश्तों के तबादले की सदारत की। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला एन जनार्दन रेड्डी की आज यौम पैदाइश है और इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने एन जनार्दन रेड्डी को खिराज अकीदत पेश किया है और उनकी खिदमत को याद किया। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इस मौके पर इन्होंने अपने बेटे की शादी का दावतनामा पेश किया जो 5 मार्च को होने वाली है। इस मौके पर नायब वजीर आला के अहले खाना भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश असेंबली का बजट इजलास जारी है। वक्फे सवालात के दौरान अरकान असेंबली ने दरियाए गोदावरी के पानी के इंतजाम, आलूदगी और दीगर उमूर पर सवालात किए। रियासती वज़रा ने इन सवालात के जवाबात दिए। నిరంతర విధానాన్ని మనకు తెలియజేస్తున్నాయి అధ్యక్ష। దీన్ని మనం లెక్కగడితే 1000 సంవత్సరాల నుంచి 300 సంవత్సరాల వరకు ఉన్నటువంటి ఈ అవశేషాలుగా 300 అంటే 3000 300 అండి, అదే అంటున్నాను। ఇప్పుడు పాత క్రీస్తు పూర్వం ఏమవుతుందంటే అండి బీసీలో ఎలా వెనక్కి వెళ్తుందండి, క్రీస్తు శకంలో వచ్చేటప్పటికి ముందుకు వెళ్తుంది కానీ క్రీస్తు పూర్వం వెనక్కి వెళ్తుంది। అంటే 1000 నుంచి 300 అంటే అది వెనక్కి వెళ్ళేదే, దాన్ని క్రీస్తు పూర్వం 300 ఆ ప్రకారం దాన్ని తీసుకున్నాం అధ్యక్ష। వీటికి ప్రత్యేకించి బడ్జెట్ కూడా లేదు అధ్యక్ష। కాకపోతే పోలవరం ప్రాజెక్టులోనే ఆర్కియలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వారి ఎక్స్కవేషన్స్కి సంబంధించి కొంత బడ్జెట్ని పొందుపరచడం వల్ల పోలవరం ముంపు ప్రాంతాలని మనం వాటిని తవ్వకాలు చేపట్టడం జరిగింది। ఎందువల్లంటే అది సబ్మెర్జ్ అయిపోతే ఇబ్బంది వస్తుంది కనుక రేపొద్దున తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు కనుక అది టేకప్ చేసాం అధ్యక్ష। తర్వాత ఇంకా భవిష్యత్తులో టేకప్ చేయబోయేవి కూడాను కళింగుల రాజధాని అయినటువంటి దంతపురం అంటే ఇచ్చాపురం దగ్గర మన శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఆ బుద్ధిస్ట్ సైట్ అధ్యక్ష, అది దాంట్లో కూడా ఎక్స్కవేషన్ చేపడతాం। అదేవిధంగా గుడివాడ కొండ విజయనగరం జిల్లాలో అది కూడా ఒక బుద్ధిస్ట్ సైట్। ఈ రెండు చోట్ల కూడా భవిష్యత్తులో। और अब रुख करेंगे आंध्र प्रदेश असेंबली का, जहां पर असेंबली इजलास जारी है। సాయంతో కట్టడి చేస్తుందో మనం చూసాం। ముఖ్యంగా మనం చూస్తే అధ్యక్ష 1924 మధ్య గంజాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ వీధి వీధిన గంజాయి, స్కూల్స్లో గంజాయి, కాలేజీల్లో గంజాయి, యూనివర్సిటీల్లో గంజాయి, పిల్లలకు ఉద్యోగాల కల్పన వదిలేసి ఈ గంజాయి అలవాటు చేసి అనేక అరాచకాలకి దోహదపడతాడు చేసింది ఆనాటి ఒక పైశాసిక ప్రభుత్వం 1924 మధ్య। దాన్ని కట్టడి చేయాలంటే ఒకసారి అలవాటు పడిన తర్వాత ఎంత కష్టమో ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వానికి అర్థమవుతా ఉంది।
దానికి అందుకనే ఈగలు కూడా ఏర్పాటు చేసి సపరేట్గా దీన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉన్నారు. అయినా అక్కడక్కడ ఇంకా ఈ పైశాసిక ప్రవృత్తి నిన్న కూడా మనం చూసాం చిత్తూరు జిల్లాలో కొన్నిసార్లు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఒక్కసారిగా నియంత్రించాలంటే ఈ అరాచకాలని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంత కష్టపడుతున్నారో మనం ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ ఉన్నాం. అది పూర్తిగా కూడా కంట్రోల్లోకి వచ్చే పరిస్థితి కూడా వచ్చింది అధ్యక్ష. అందుకనే మనస్ఫూర్తిగా ఈ డిపార్ట్మెంట్ను నేను అభినందిస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఒక అరాచకం, తాగిన మొత్తంలో ఏం చేస్తారో తెలియదు, మహిళలపై అత్యాచారాలు చేస్తారు, పిల్లల్ని చంపుతారు, దోపిడీలు చేస్తారు, దుర్మార్గం చేస్తారు. ఆ విధంగా పెంచి పోషించింది 1924 మధ్య ఒక అరాచక ప్రభుత్వం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఈరోజు దాన్ని కట్టడి చేసే దాంట్లో ఈ ప్రభుత్వం చాలా కష్టపడి కూడా దాన్ని కంట్రోల్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఇది ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. పిల్లల భవిష్యత్తును నాశనం చేసే వ్యవస్థ ఇది. గతంలో ఎప్పుడు కూడా ఇది మనం వినలేదు. ఈ 1924 మధ్యలో ఈ గంజాయి సరఫరా పిల్లల భవిష్యత్తుని, పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని, వ్యవస్థలను ఏ విధంగా దెబ్బతీసిందో మనం చూసాం. చదువుకుని పిల్లలు, బాగా ఉద్యోగాలు చేసిన పిల్లలు దీని మొత్తంలో పడి బానిసలైపోయి జీవితాలు సాధించుకునే పిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళకి వ్యాపారం అయిపోయింది వేల కోట్లు. మనకి ఈరోజు బాధ్యతగా మనం చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా మహిళల భద్రత కోసం శక్తి యాప్ను ప్రారంభించింది ఈ ప్రభుత్వం. దీని ద్వారా 7 నిమిషాల్లోనే రెస్పాన్స్ వస్తూ ఉంది. మరియు వేధింపులకి పాల్పడే వారిపై కఠిన చర్యలు కూడా తీసుకుంటుంది. ముఖ్యంగా అధ్యక్ష, నేను ఒకటి మీ ద్వారా బాగా పనిచేస్తున్నాం, మంచి పేరు వచ్చింది ప్రభుత్వానికి, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా మంచి పేరు వచ్చింది, మంచి అధికారులు ఉన్నారు రాష్ట్రాల్లో, జిల్లాల్లో. కానీ సోషల్ మీడియాని కంట్రోల్ చేసే దాంట్లో ఇంకా కఠినమైన చట్టాలు తేవాలి, కఠినంగా సవరించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇష్టారాజ్యంగా మాట్లాడటం, లేకపోతే మనం చూసాం గుంటూరులో ముఖ్యమంత్రి గారిని మాట్లాడే విధానం, అంటే వీళ్ళు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు కాబట్టి ఏదో దుర్భాషలాడితే మా మీద కేసులు పెడతారు, జైలుకి పంపిస్తారు కాబట్టి రాజకీయంగా బతకవచ్చు. ఇదొక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది ఒక్కొక్కడికి. మొన్న బిల్ గేట్స్ గారు వస్తే కడుపు మంట వీళ్ళకి. ఇప్పుడు ఆయన 10 లక్షల కోట్లు సంపాదనలో కుటుంబానికి కూడా ఇవ్వకుండా ట్రస్ట్ పెట్టి ఆయన అంత అమౌంట్ ప్రజల కోసం ఉపయోగిస్తున్నారు. ఆయన్ని కూడా అందరాని భాషలో మాట్లాడి ఒక చెత్త మీడియా పెట్టుకొని మాట్లాడుతుంటే ఏమనాలి వీళ్ళని? టీ బిస్కెట్లు ఖర్చులు చెప్పాలంటే అధ్యక్ష వీళ్ళకి, బిల్ గేట్స్ గారు వచ్చినప్పుడు మీటింగ్కి. అంతకని వీళ్ళకి ఏం సబ్జెక్ట్ లేదా ఇంకా మాట్లాడటానికి? వీళ్ళకి ఎవరిని మనం మాట్లాడుతున్నాం, ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం? वाईएसआरसीपी के लीडर व साबिक वजीर अंबाटी राम बाबू ने साबिक वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। जराये के मुताबिक इस मौके पर अंबाटी राम बाबू ने जगन मोहन रेड्डी को अपने घर पर हुए हमले, गैर कानूनी मुकदमात और पुलिस के रवैये के बारे में वाकिफ करवाया और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। याद रहे कि अंबाटी राम बाबू जमानत पर रिहा हुए हैं। शहर हैदराबाद के रियासत नगर कारपोरेटर सलीम बेग की जानिब से कल जुमेरात को दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में कायद मुकर्रना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की, जबकि इस दावत इफ्तार में मजलिस के दीगर कायदीन और मुसलमानों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। एआईएमआईएम चारमीनार के रुकने असम्बली मीर जुल्फिकार अली और डीसीपी साउथ जोन किरण खरे ने मुकद्दस माह रमज़ान के पेश नज़र जुमेरात को मक्का मस्जिद में रोज़ेदारों में इफ्तार के बुक्स तकसीम किए और इस मौके पर मजलिस का कारकुन और पुलिस के दीगर अहदेदार भी मौजूद थे।
कड़पा के कदीम आस्ताना आस्ताने मखदूम इलाही में रमजानुल मुबारक के पहले रोजे के इफ्तार के मौके पर रूह परवर मंजर देखा गया। शहर के मुकामी मुसलमानों और बच्चों ने रोजा इफ्तार किया। इस मौके पर इन्होंने खुसूसी दुआ भी की और माह रमजान के पेश नज़र यहाँ वसी तर इंतजाम किए गए ताकि रोजेदारों को कोई तकलीफ ना हो सके। तेलंगाना के वेमुलावाड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में अंडर 21 रियासती सतह का 8वां यूथ वॉलीबॉल मुकाबला जो 3 दिनों से जारी था, राजन्ना सिलसिला जिले में अख्ताम को पहुंचा। इस मुश्तरका अजला की 20 टीमों ने मुकाबले में हिस्सा लिया। फाइनल मैच में मर्दों के जुमरे में खम्मम ने पहला मुकाम हासिल किया और रंगारेड्डी ने दूसरा मुकाम, जबकि खवातीन के जुमरे में महबूबनगर ने पहला मुकाम हासिल किया और वरंगल की टीम दूसरे नंबर पर रही। इस मौके पर गवर्नमेंट व्हिप आदि श्रीनिवास ने कामयाबी हासिल करने वालों में ट्रॉफी, मेडल और सर्टिफिकेट पेश किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेलों में जीत और हार को यकसा तौर पर लेना चाहिए। कहा कि हुकूमत खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत मुतादद रियासतों में अप्रैल से SIR का निफाज होगा। मरकजी इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने रियासती इंतखाबी हुकाम को मकतूब रवाना करते हुए हिदायत दी है कि SIR से मुताल्लिक तमाम इब्तदाई तैयारियां जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाएं ताकि अप्रैल के महीने में इस अमल का बाकायदा निफाज यकीनी बनाया जा सके। हिदायत के मुताबिक SIR का निफाज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत कई दीगर रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में किया जाएगा। इनमें अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दीगर रियासतें शामिल हैं। जुमेरात की रात को शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर अंबरपेट इलाके में नमाज तरावी के दौरान जामा मस्जिद के पास बाज अशरार ने शरंगेजी की कोशिश की। मुकामी अफराद के मुताबिक जामा मस्जिद अंबरपेट में तरावी की नमाज अदा की जा रही थी कि इसी दौरान शिवाजी जयंती का जुलूस मस्जिद के पास पहुंचा। जुलूस में ऊंची आवाज से रिकॉर्डिंग लगाई गई थी और दानिस्ता तौर पर नमाज में खलल अंदाजी की कोशिश की गई और शरंगेजी करते हुए नारेबाजी की गई। इसी दौरान मुकामी नौजवान वहां जमा हो गए। सूरत हाल को देखकर पुलिस को तलब कर लिया गया। DCP भी रात देर गए यहां पहुंचे। पुलिस ने अपनी मुदाखलत के जरिए हालात पर काबू पाया और सूरत हाल काबू में है। आंध्र प्रदेश के पालमानीरू में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती शोभा यात्रा के मौके पर लायंस क्लब की जानिब से एक रैली निकाली गई। इस मौके पर जुलूस चलो भाई और उनके साथियों ने बिला तफरीक जात पात और रैली में शामिल अफराद में मेवेजात, ठंडे मशरूबात और दीगर अशिया तकसीम की। और यहाँ के जो हमारे आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे जो मराठा महाराष्ट्र के जो हमारे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उनका जन्मदिन है, तो उसके एतबार से हमारे शहर में है ना, हमारे सारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो चाहने वाले हैं वो सब है ना एक इकट्ठा होके और हमारे गांव में एक रास्ते से है ना एक रैली बना के आ रहे हैं। तो शायद हम मुसलमान हैं, हम भी तो यही हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और शिवाजी महाराज जो है वो हमारे भी महाराज है। जो शिवाजी महाराज है के जो सबसे बड़े जो सेनाधिपति थे उनका नाम दौलत खान था कि आज हम उनके साथ फिर नहीं सके तो क्या हुआ, तो कम से कम हमारे जो हिंदू भाई जो बहुत दूर से लेकर जो लश्कर जो ये रैली लेकर अब शिवाजी महाराज की याद में वो जो आ रहे हैं, उनकी रैली में जो भी हमारा गांव का जो भी हमारा हिंदुस्तानी भाई हिंदू भाई जो आता है, उन्होंने यहाँ तक आने तक जो थक गए होते हैं, तो उनके लिए है ना ख़ास तौर से हमारे मुसलमानों के ज़रिए से हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, वो आने वाला भी हमारा हिंदुस्तानी हिंदू भाई है, तो उनकी वजह से यहाँ है ना एक छोटा सा इंतज़ाम किया गया है कि वो जितने भी 1000-2000 भाई जितने भी भाई हैं
सबके लिए है ना यहाँ पानी का इंतज़ाम है, बिस्किट का और ये बनाना का, ये सब इंतज़ाम करके, क्योंकि हम भी ये कहना चाहते हैं कि हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। तो भाई ये है ना, क्योंकि आजकल तो ये नफरत का माहौल है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हैदराबाद मल्लापुर बीआरएस के कारकुन रिजवान ने कहा कि मल्लापुर डिवीजन के ग्रीन हिल्स कॉलोनी में मच्छरों की कसरत पाई जा रही है। कहा कि मच्छरों की वजह से आवाम को मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां लाहक होने का खदशा है। इन्होंने मच्छरों के खात्मे के इक़दाम करने का अहदेदारों से मुतालबा किया। मजीद कहा कि वो अपनी कोशिशों से कॉलोनी में मच्छरों के खात्मे के लिए फॉगिंग करवाए। ఈరోజు కాలనీ నుంచి కూడా ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు. ఎన్నో కంప్లైంట్స్ పోయినాయి జిహెచ్ఎంసీకి, కానీ ఎవరు రెస్పాండ్ కాలేదని నా దృష్టికి తేవడం జరిగింది. ఈ యొక్క గ్రీన్ హిల్స్ కాలనీ ఫేజ్ 2 నుంచి యువత ఎవరైతే ఉన్నారో నా దగ్గరికి వచ్చి ఈ యొక్క బాధ ఉందని చెప్పారు. దీనివల్ల నేనేం చేసినా అంటే మస్కిటో ఫాగింగ్ మిషన్ ఏదైతే ఉందో మొత్తం కాలనీలో మొత్తం తిప్పి మొత్తం ఏదైతే చెట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయో, ఏదైతే డ్రైనేజ్ మొత్తం ఆగి ఉందో అక్కడ మొత్తం ఈ ఫోగింగ్ మిషన్ కొట్టడం జరిగింది. దయచేసి నేను ఈ గవర్నమెంట్కి ఒక కోరుతున్నాను, ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో దోమలు అనేది విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి. ఈ దోమలతోని రాబోయే రోజుల్లో మనకు మలేరియా, డెంగ్యూ ఇవన్నీ వచ్చే అవకాశం ఉన్నాయి. డెఫినెట్గా దీన్ని మనం సాల్వ్ చేయాల్సిన ఒక గవర్నమెంట్కి బాధ్యత ఉంది. జిహెచ్ఎంసీని ఇమీడియట్గా యాడ్ కావాలి. ఎందుకంటే వృద్ధులైనా కానీ పిల్లలైనా కానీ చాలామంది ఉన్నారు, వాళ్ళకి విపరీతమైన మనకు రోగం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అందుకని ఈ రోజు కాదు, నేను ఇప్పటికి మల్లాపూర్లో ఇప్పటి నుంచి ప్రతి ఒక్క కాలనీ విజిట్ చేస్తాను. ఈ యొక్క మస్కిటో ఫోగింగ్ మిషన్ తీసుకొని ప్రతి ఒక్క దగ్గర ఈ ఫోగింగ్ అన్నీ చేస్తా. ఈ ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఫిక్స్ చేయడానికి నా వంతు। रमजान की आमद के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दरामदशुदा खजूरों की मांग में इजाफा हुआ है। ताजिरों का कहना है कि मांग में तेजी से इजाफा हुआ है और खासतौर पर इराक, सऊदी अरब और ईरान जैसे ममालिक से दरामद की जाने वाली प्रीमियम अक़साम की खजूर के लिए रमजान का मुक़द्दस महीना फजर से शाम तक रोज़ों के साथ खुसूसी दुआओं के साथ मनाया जाता है। इस महीने में खजूर को खास अहमियत हासिल है क्योंकि रोज़ेदार खजूर से इफ्तार करते हैं। इस बार थोड़ा इन्फ्लेशन, थोड़ी महंगाई ज़्यादा हो गई है बस, लेकिन वो कोई महंगाई नहीं होती, लेने वाले लेके जा रहे हैं। कहाँ से आती है? हमारे यहाँ इराक से आती है, ईरान से आती है, दुबई से आती है, सऊदी से आती है। कहाँ सप्लाई होती है? हमारी लोकल में ज़्यादा सप्लाई होती है। सिटी के अंदर जो ठेले वाले, रेडी वाले हैं वो आते हैं। कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स तो अच्छा है काफ़ी। ऑलमोस्ट हर साल रमज़ान में बरकत महीने में थोड़ा, इस बरकती महीने में रिस्पॉन्स हमारा सही रहता है। स्टार्टिंग में थोड़ी तेज़ी होती है। बाज़ार में तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस चीज़ का। लोग रमज़ान के टाइम में अच्छी खजूर ख़रीदते हैं। खजूर ईरान से आती है, इराक से आती है और सऊदी से आती है। सऊदी के माल की डिमांड कम रहती है क्योंकि वो माल महंगे होते हैं। कलमी, मैगजॉल वगैरह सभी ना, कलमी हो गया आपका, और ये क्या है इधर ये सुगरी वगैरह। ईरान के जो माल हैं वो सस्ते रहते हैं, 50 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये। तो ग्राहक यहाँ से ले जाता है 70-80 रुपये, 50 रुपये, बाज़ार में जाके 100 रुपये बेच लेता है। इराक के माल भी सस्ते रहते हैं तो वो भी जाके बाज़ार में 100 रुपये बेच लेता है। गुजरात के नायब वज़ीर आला हर्ष सिंघवी ने गांधीनगर में नवज़ायदा बच्चों के लिए एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया है। उन्होंने पुलिस सहूलियात का भी इफ्तिताह किया। इन एम्बुलेंसेस के जरिए शदीद बीमार नवमौलूद बच्चों को जदीद तिब्बी सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों में महफूज तरीके से पहुंचाया जाएगा। जबकि इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने सेक्टर 27 में गांधीनगर पुलिस कैंटीन और पुलिस जिम का भी इफ्तिताह किया। राज्य सरकार द्वारा मारा पोलीस परिवार माटे एक साथे आवनारा 5 વર્ષમાં 20,400 થી વધુ મકાનો બનાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। छत्तीसगढ़ के नायब वज़ीर आला विजय शर्मा ने कहा है कि जब दुनिया डिजिटल दौर में तेजी से आगे बढ़ रही थी तो कई आलमी कंपनियां भारत से होने वाले ब्रेन ड्रेन का फायदा उठाकर बड़ी ताकत बन गई। इन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क में ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है जिसका मकसद बासलाहियत नौजवानों को मुल्क में ही मौके फराहम करना है। व्यापार और एआई समिट, मतलब आपसे मैं कहना चाहता हूं कि जब डिजिटल डायरेक्शन में दुनिया आगे बढ़ी थी उस समय भारत से ब्रेन ड्रेन करके बहुत सारी कंपनियां बड़ी हो गई थी, जाइंट हो गई थी। अब उन सारी स्थितियों को पूर्व में ही समझकर ऐसे इवेंट्स देश में करके देश की प्रतिभा देश में रहे और देश की ही कंपनियां बड़ी हों, इसके लिए बड़ा प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत बढ़िया है, फ्यूचरिस्टिक है।
आने वाले समय में मैं निसंदेह ये मानता हूं कि एआई की दिशा में भारत महाबली बनकर सामने आएगा। एआई का भारत के लोग स्वागत कर रहे हैं, वरन दूसरे पश्चिम देश के बहुत सारे देश ऐसे हैं, पश्चिम में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो एआई को संशय की दृष्टि से देख रहे हैं। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया। लोग हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया भर में मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी मुल्क और बैरून मुल्क जाकर कौम की शिकायत करते हैं। बनाया जा रहा है देश के विकास के प्रति सभी लोग ये देश और दुनिया में जाके अपने देश की प्रगति की चर्चा करते हैं। राहुल गांधी देश और दुनिया में जाकर के देश की शिकायत करते हैं, तो बदनाम कौन करेगा? जो आदमी सदन के अंदर विपक्ष के नेता की भूमिका नहीं निभा करके उनकी जुबान ऐसा लगता है कि भारत को बदनाम करने की केवल जुबान। माहौल बीजेपी लीडर दिलीप घोष ने मगरबी बंगाल में पार्टी की परिवर्तन यात्रा में कहा है कि हर सियासी पार्टी अवामी रसाई के लिए कुछ न कुछ करती है। कहा कि बीजेपी भी हर रियासत में इस तरह के आउटरीच प्रोग्रामों का इनेकाद करती रहे और रियासत में अभी एक परिवर्तन यात्रा शुरू की जा रही है जिसमें पार्टी के कायदीन शिरकत करेंगे। नहीं, वो वजह के साथ हमारा समझौता था। वो उनके कैंडिडेट थे, बीजेपी का सिंबल से लड़े थे और पहले दिन से ही बीजेपी की जो सिद्धांत है कार्यपद उसके साथ नहीं थे। वो पहले ही भी बोलते थे वो, और आज जो है कि पहले ही साफ हो गए तो अच्छा हुआ। हम अपना जो कैंडिडेट देके वहाँ से जिताएंगे। जिताने वाले हमारे साथ है, जीतने वाले गए हैं। जनसंपर्क के लिए सब पार्टी कुछ ना कुछ करता है और देश में इस यात्रा का परंपरा पहले से रही है, युगों से, अलग अलग नाम से। तो बीजेपी भी हर स्टेट में करता है, इसलिए बंगाल में भी जनसंपर्क करने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाला जा रहा है। इसमें सारे लीडर्स। मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में गुज़िश्ता रात दो गिरोहों के दरमियान झड़प हुई। इसके बाद हालात कशीदा हो गए, मगर अब हालात काबू में हैं। इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात कर दिया गया। हसास मुकामात पर इजाफी पुलिस तैनात है ताकि अमन व अमान बरकरार रह सके। सिहोरा कस्बा के आज़ाद चौक क्षेत्र में दो पक्षों के विवाद में कुछ पत्थरबाजी वगैरह की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस बल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया है। इसमें कोई ऐसा गंभीर हताहत या किसी महत्वपूर्ण स्थल को ऐसा क्षति इत्यादि नहीं पाया गया है। बाकी आगे इसमें और जांच पड़ताल की जा रही है कि इन लोगों ने कैसे किया है। संदेह के आधार पर कुछ लोग को हिरासत में भी लिया गया। संख्या कितनी? 15 के लगभग लोग हिरासत में लिए गए हैं। बाकी टीमें अन्य संदेहियों की भी तलाश में है। आंसू गैस की गोली वगैरह? हाँ, आंसू गैस के गोले कुछ छोड़े गए हैं और पर्याप्त यहाँ पे बल भी लगाया गया है। जिले के आसपास के भी थानों का फोर्स बुलाया गया। सर, अभी किस तरह के हालात हैं? ये सिहोरा सब डिवीजन में जो घटना हुई थी, इसके बाद पर्याप्त बल जो है मौके पर है और एरिया डोमिनेशन का भी एक्सरसाइज कर लिया गया है। स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। कुछ संदेही लगभग 15 के आसपास जो थे उन्हें हिरासत में भी लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है।